Hello, my dear children. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Children, in previous lesson we learned that things are made up of different materials. Do you know from where do we get these materials? Yes, we get these materials from plants, animals and from the earth. From the earth what would we get? We get petroleum, soil and rocks. Do you know, children, soil is very important for all living things? So, in this chapter, we will learn about rocks and soil. Now, let's start with chapter 3, that is rocks and soil. We will start with explanation. Rocks. The earth is made up of rocks and soil. Rocks are made up of tiny grains called minerals. Some rocks are made up of only one mineral, others are made up of several minerals. आपको मालूम है हमारी अर्थ रॉक्स और सॉइल से बनी है। और रॉक्स कैसे बनी है? रॉक्स टाइनी ग्रेन्स यानी छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें मिनरल्स कहते हैं उससे बनी है। सम रॉक्स आर वेरी हार्ड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट रॉक। ग्रेनाइट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड रॉक होता है और ग्रेनाइट भी हार्ड होता है, लेकिन डायमंड जितना नहीं। सम रॉक्स आर नॉट सो हार्ड। कोल इज़ नॉट वेरी हार्ड। चॉक इज़ अ सॉफ्ट रॉक, इट ब्रेक्स इजीली। कुछ रॉक्स हार्ड नहीं होती हैं जैसे कोल, और चॉक तो सबसे सॉफ्ट रॉक है जो आसानी से टूट भी सकता है। चिल्ड्रन, डू यू नो हु इज़ अ जियोलॉजिस्ट? अ पर्सन who studies how soil and rocks make up the earth is called a geologist. Now we come to soil. A long time back, there were only rocks on the earth. The action of sunlight, water, and wind and changes in weather broke the rocks into smaller and smaller pieces. बहुत समय पहले अर्थ पर सिर्फ रॉक्स ही थे। जब उन पर सनलाइट, पानी, हवा और मौसम बदलने का असर पड़ा तो वो रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। ओवर मैनी ईयर्स दीज रॉक्स ब्रोक इनटू वेरी स्मॉल पीसेस टू फॉर्म सॉइल। बहुत सालों तक टूटते टूटते ये रॉक्स सॉइल में बदल गई। When plants and animals die, they rot and mix with the soil. जब प्लांट्स और एनिमल मरकर सड़ जाते हैं तब वो सॉइल के साथ मिल जाते हैं। Thus, soil is made up of two main parts, tiny pieces of rocks and rotted pieces of dead plants and animals. Soil दो पार्ट से मिलकर बनी है, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े और डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रोटेड पीसेस से। Rotted plants and animals are called humus. Humus is dark brown or black in color. It is good for the healthy growth of plants. Humus plants के healthy growth के लिए बहुत अच्छा है और ये dark brown और या black color का होता है। Children, soils collected from different places have different colors. अलग अलग जगह की मिट्टी का रंग अलग होता है। Some are light brown and some are dark brown. In some places the soil is red. कहीं पे लाइट ब्राउन, कहीं पे डार्क ब्राउन और कहीं पे तो सॉइल का रंग लाल होता है। दिस सॉइल ऑल्सो फील डिफरेंट, और ये छूने में भी अलग महसूस होती है। दे आर डिफरेंट बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट रॉक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अलग अलग तरह की रॉक्स से बनी होती हैं। नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी दैट व्हाट डज सॉइल कंटेन। प्लेस सम सॉइल फ्रॉम अ गार्डन इन अ लार्ज बॉटल. Pour some water in the bottle. Place the lid on and shake the bottle well. Now, let the bottle remain undisturbed for several minutes. Observe the different layers that settle down. तो बच्चों, अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे और ये देखेंगे कि सॉइल में क्या होता है। गार्डन में से थोड़ी मिट्टी लेके हम एक बॉटल में डालेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा पानी डालेंगे और लिड लगा के बॉटल को अच्छे से शेक करेंगे। फिर बॉटल को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे बिना हिलाए डुलाए। हम उसकी लेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे। इन द एक्टिविटी यू नोटिस दैट स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रेवल सेटल एट द बॉटम. Above the gravel is a layer of soil containing large particles. These are sand particles. You can see the particles separately. Above the sand, you can see a layer of soil containing very fine particles. You cannot see the particles separately. This is a layer of clay.
सैंड के ऊपर जो लेयर बनती है वो क्ले की होती है और वो उसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए हम उसके पार्टिकल्स को अलग से नहीं देख पाते हैं। फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ द वाटर आर डार्क ब्राउन पीसेस ऑफ ह्यूमस. There are spaces between the soil particles. These spaces are filled with water and air. तो अभी आपने एक्टिविटी में नोटिस किया कि जो स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिनको ग्रेवल बोलते हैं, वो नीचे बॉटम पे सेटल होते हैं और ग्रेवल के ऊपर एक सॉइल की लेयर होती है जिसे कि सैंड पार्टिकल्स बोलते हैं और हम इन पार्टिकल्स को अलग मतलब कि सेपरेटली देख सकते हैं। और सबसे ऊपर पानी में ह्यूमस के डार्क ब्राउन पीसेस तैरते हुए दिखाई देंगे। क्या आपको पता है कि सॉइल पार्टिकल्स में जगह भी होती है और ये जगह पानी और हवा से भरी हुई होती हैं। अभी हम फिर से एक एक्टिविटी करेंगे ये देखने के लिए कि सॉइल कंटेन्स एयर एंड वाटर। फर्स्ट वी विल सी दैट सॉइल कंटेन्स एयर। फॉर दिस एक्टिविटी टेक सम सॉइल इन अ बाउल, pour some water over the soil. You will see bubbles of air coming out of the soil. This is because the air present in the spaces between the soil particles escapes in the form of bubbles. एक बाउल में थोड़ी मिट्टी लें, उसके ऊपर थोड़ा पानी डालें। आप देखेंगे कि उसमें से हवा के बबल्स बाहर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जो सॉइल पार्टिकल्स की जगह के बीच में हवा थी वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल रही है। Now we will see soil contains water. Take some soil in a bowl and heat it on a stove. Hold a metal plate over it. You will see small droplets of water forming on the underside of the plate. This is because water present in the soil evaporates on heating and condenses when it touches the cold plate. Next, we will start with types of soil. Have you seen a potter make pots? The soil that is used to make pots is soft and can be easily made into any shape. आपने कभी कुम्हार को घड़े बनाते देखा है? जिस मिट्टी से घड़े बनते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और उसको किसी भी शेप में हम ढाल सकते हैं। The soil contains tiny particles and is smooth to the touch. It mostly contains clay. Such soil is called clayey soil. इस मिट्टी में बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और टच करने में एकदम स्मूथ होती है। ये ज़्यादातर क्ले से बनी होती है, इसीलिए इस सॉइल को क्लेई सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी कहते हैं। The soil particles in clayey soil do not have large spaces between them. There is not much air in the soil. Water cannot go through this soil easily. The soil therefore holds a lot of water and is sticky. क्लेई सॉइल के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर लार्ज स्पेसेस नहीं होती और उसके अंदर ज़्यादा हवा भी नहीं होती है। पानी भी इजीली नहीं जा सकता है, जिसके कारण जो सॉइल है वो पानी को बहुत रोक के रखती है और स्टिकी हो जाती है। और प्लांट को बढ़ने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, पानी की भी और हवा की भी। इसीलिए क्लेई सॉइल के अंदर ज़्यादा प्लांट्स नहीं ग्रो हो सकते। आप कभी बीच पे गए हैं? कभी रेत के साथ खेले हैं? हैव यू बीन टू द बीच? प्लेइंग विद सैंड इज़ अ लॉट ऑफ फन. इट feels rough and loose. Soil which contains a lot of sand is called sandy soil. Sandy soil जो कि बहुत सारी सैंड जिसमें रेत होती है उसको सैंडी सॉइल बोलते हैं और वो कैसी फील होती है? रफ एंड लूज. Sandy soil has large particles with lots of spaces between them. Water goes through these spaces very easily. Therefore, sandy soil cannot hold much water. Very few plants can grow in sandy soil. सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत स्पेस होती है तो पानी इजीली चला जाता है अंदर। इसीलिए सैंडी सॉइल जो होती है वो ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाती और इसीलिए इसमें थोड़े से ही प्लांट्स लग सकते हैं। लोम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. इट कैन होल्ड बोथ वाटर एंड एयर.
Loamy soil also has humus in it. Most plants grow well in loamy soil. थर्ड टाइप की जो सॉइल है उसे लोमी सॉइल बोलते हैं। लोमी सॉइल जो है वो सैंड और क्ले यानी कि रेत और चिकनी मिट्टी दोनों के मिक्सचर से मिलकर बनी है और ये दोनों पानी और हवा को होल्ड करके रख सकती है। इसके अंदर ह्यूमस भी होता है जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ओके बच्चों, अभी आपको पता चल गया कि मिट्टी कितने तरह की होती है। मिट्टी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। क्लेई सॉइल जो है वो पानी को रोक सकती है लेकिन उसके अंदर ज़्यादा हवा नहीं होती। सैंडी सॉइल जो है वो हवा को होल्ड कर सकता है लेकिन पानी को नहीं ज़्यादा कर सकती। और लोमी सॉइल जो है वो दोनों का मिक्सचर है, क्ले एंड सैंड, इसीलिए ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो लोमी सॉइल के अंदर ही लगते हैं। नाउ वी विल कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. They take water and minerals from the soil. Thus, soil provides us with food. Different plants grow well in different types of soil. Rice grows well in clay soil, whereas bajra grows well in sandy soil. Most plants grow well in loamy soil. Manures and fertilizers are added to soil to make it rich and fertile. आपको पता ही होगा कि प्लांट्स, पौधे जो हैं वो मिट्टी में ही उगते हैं और वो पानी और मिनरल्स भी मिट्टी से ही लेते हैं। तो जो मिट्टी जो है वो हमें हमारा खाना प्रोवाइड करती है। अलग अलग तरह के पौधे अलग अलग तरह की मिट्टी में अच्छे से उगते हैं। जैसे कि राइस, चावल जो है वो क्लेई सॉइल में होता है, बाजरा सैंडी सॉइल में, और अलग तरह के बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो लोमी सॉइल में उगते हैं। और बच्चों, आप जानते हैं कि सॉइल को रिच और फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ बनाने के लिए हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं? हम उसके अंदर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं। प्लांट्स कैन देन ग्रो बेटर एंड गिव अ ग्रेटर यील्ड. यील्ड मीन्स अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड. जब हम सॉइल में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स मिला देते हैं तो हमें किसी भी प्लांट मतलब क्रॉप, जैसे कि सपोज अगर ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं तो हमें उसकी अच्छी पैदावार मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी मिलती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको। कुछ एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स, रैबिट्स भी अपना घर सॉइल के अंदर बनाकर वहाँ पे रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, रैबिट्स एंड मोल्स burrow and live in the soil. We also use things from the soil to build our houses. We make cement, bricks and glass from soil. हम हमारे घर बनाने के लिए भी मिट्टी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीमेंट, ब्रिक्स और ग्लास, ये सब भी मिट्टी से ही बनते हैं। Now you can understand the earth is made up of rocks and soil. Rocks are made up of one or more minerals. Soil is formed when rocks break up into pieces. Soil is made up of gravel, sand, clay and humus. Clay soil holds water but not much air. Sandy soil holds air but not much water. Loamy soil is a mixture of clay and sand. Soil is very important for all living things. So children, here we are over with our third chapter, Rocks and Soil. I hope you all understood the chapter very well. We will meet again soon with our fourth chapter, Our Houses. Till then, stay safe, stay healthy, stay happy. Bye bye. Thank you.